So yesterday we did components of Photoshop window. Any doubt? Any doubt to anyone in the components? Yesterday's lecture is clear. चलो मैम मैम जो कंपोनेंट्स के अंदर जो पैलेट्स है मैम वो एक टाइम आप दोबारा एक्सप्लेन कर दो। पैलेट्स बच्चे ये साइड पे देखो, these are the windows. ये जो पैलेट्स साथ में फ्लोटिंग विंडोज हैं ये पैलेट्स हैं. सो लाइक फॉर कलर डिफरेंट पैलेट गिवन है, एडजस्टमेंट्स के लिए ब्राइटनेस देने के लिए अलग से पैलेट है, लेयर के लिए अलग से नीचे पैनल दिया हुआ है. सो दीज आर कॉल्ड दी पैलेट्स. That will help you given some different kind of functionality related to a particular task, so you can directly use these functions from here. Okay, ma'am. Any other doubt? And yes, no, note down the extension of Photoshop, that is .psd. The extension of Photoshop is .psd. .psd. So yesterday we just set the settings from the new dialog box by following the command file menu, new option, a new dialog box will appear. Here you have to specify the name of a file. Then you have to specify the height and width, what pixels you want to set, the resolution, number of pixels per inches, then the color mode, the background content. So these options you have to set, clicking on OK. So this is called a work area or the canvas where we are actually going to edit our photographs. Okay. यहाँ तक सबको clear है? Okay. Now the next topic in your chapter in your book is inserting images. So for inserting image, look at the steps carefully. File menu, place option. Write down the command file menu, place option for inserting an image in the Photoshop window. A lot of disturbance at your end. Mute your mics, everyone. So command for inserting the image in the Photoshop window. जब आपको insert करनी है, image को insert करना, so there are now two different things. Inserting an image in the document and opening an existing image. आपको अगर image को open करना है तो आपको command follow करनी है file menu open option. See, file menu open option. तो मैं दोनों चीजें करके बता रही हूँ. So look carefully. सबसे पहले I'm going to insert an image. So for inserting an image, the command is file menu place option. Okay. File menu place option. So place dialog box will appear. Place dialog box will appear. Now in your system you have to locate the file, whatever file you want to insert. Right now I'm just browsing my system, and in this Photoshop folder I have downloaded some of the images. So I'm going to just select the image. Firstly select the image like this and click on the place button. Okay. File menu, place option, place dialog box appear, choose the image that you want to insert, and then after selecting the image path, click on the place. So this way your image will get inserted in the Photoshop document that now it is available to you people for editing. Now you see, this image is opened at 66.7% right now. It is opened at 66.7%. Okay. अगर आपको इसको 100% पे करना है तो I told you yesterday what you have to do, Control++. Right. Now whenever you will insert the image is available for the operations, for the editing. So you can see these handles are appearing now. So you can resize it, you can rotate it by this dragging the handles. So once you are satisfied whatever the operations you have done after doing resizing or rotation of the image, so you can click on the enter button. Okay, आप चाहे enter button press कर दो from the keyboard, or you can press on this tick button.
see on the option bar it is appearing tick button. So this is called cancel and this is commit. It means yes, you have finalized your actions. All right. So see, these are the handles appearing. Okay, so I can resize the picture like this. आपको जितना desired size रखना है, you can resize it accordingly. Okay, so this way the handles are to be adjusted, and if you want to rotate, so see, this is the way you can rotate your image. और आपको जितनी भी सेटिंग्स करने के बाद अगर आपको लग रहा है that yes necessary operations has been applied, so then you can finalize your by clicking on this tick button. Now the image has been saved, or you can press the enter key from the keyboard also. So this is the one way. अगर आपको लग रहा है कि नहीं मुझे अभी यहाँ पे कुछ और changes करनी है, so what you can do is from here you can press Ctrl plus T, the shortcut key. Ctrl plus T once you have selected the image. What portion you want to select, so you can select it using a selection tool. So I'm selecting, you can see a border, a dashed border is appearing. So this is the selection marquee. ये जो एक rectangular portion बन रहा है, इसको हम बोलते हैं selection marquee. All right. Now the second way is when you want to open an image, so file, open. So open dialog box will appear now. Choose the image that you want to open and clicking on open. So this way the image will be opened. अब the difference is जब आपने place किया था, when you have inserted an image, the image is available for the editing. Image आपकी available थी editing करने के लिए. But जब आप open कर रहे हैं, so it is just a still image. So whatever the operations you want to perform in it, firstly you have to select the part of an image that you want to use, then Control plus T. अब देखो यहाँ पे cursor handles and rotation handles are appearing. Okay, Control plus T. Right? Once again look at the difference carefully. अगर तो आपको इमेज को इंसर्ट करना है, the method is file menu place. फाइल मेन्यू प्लेस करने से पहले से ही आपके पास हैंडल्स अपीयर होंगे, मींस द इमेज इज इन एडिटिंग मोड. आप इमेज को एडिट कर पाओगे. ओके, लेकिन अगर आप इमेज को सिंपली ओपन कर रहे हैं, इफ यू आर जस्ट ओपनिंग द इमेज, द कमांड इज फाइल मेन्यू ओपन ऑप्शन और कंट्रोल प्लस ओ. The shortcut key is Control plus O or File Menu Open option. In that case, the image will just open. It is not available for the editing. लेकिन हम उसको कैसे edit करेंगे? Look carefully once again on the screen how you will edit the photographs. There are two methods again. Firstly, whenever you have to edit an image, first step is to select the part of the image that you want to edit. Either you can select partially or you can select the full-fledged image. So how to select it? So these are the selection tools here. Look at my mouse pointer. These are the selection tools available. So selection tool में सबसे पहला कौन सा आ रहा है? This is basically the marquee tool. It is a marquee tool. Now marquee tool again is having 4 sub tools: rectangular marquee, elliptical marquee, single row marquee, and single column marquee tool. The shortcut key for this tool is M, akela M. You will not press Control plus M or Alt plus M. Single M is to be pressed from the keyboard. Okay. First tool I am telling you here is marquee tool, that is used for the selection. The shortcut key for the marquee tool is M. The shortcut key is M. Okay. So firstly,
आप किसी भी टूल के साथ अपनी इमेज को सिलेक्ट कर लो. हाउ टू सिलेक्ट? सिंपली यू हैव टू ड्रैग a mouse pointer and you have to draw it like this. See, I'm selecting the part of the image. Okay. Once again, everyone, look at the screen. Select the part of the image just by dragging the mouse pointer. The image will selected. Now, for editing it, the shortcut key, write down the shortcut key for editing, that is transforming. Control plus T. Control plus T. चाहे तो आप कंट्रोल प्लस टी कर लो, और यू कैन यूज अंडर द एडिट मेन्यू फ्री ट्रांसफॉर्म ऑप्शन. एडिट मेन्यू फ्री ट्रांसफॉर्म और कंट्रोल प्लस टी. क्लियर टिल नाउ? एनी डाउट टू एनीवन? यस मैम. मैम जो ये कंट्रोल प्लस टी शॉर्टकट की है, ये फॉर एडिटिंग एंड ओपन इमेज है. एडिटिंग इमेज फॉर ट्रांसफॉर्मिंग. ट्रांसफॉर्मिंग में आप रीसाइजिंग भी कर सकते हो, रोटेशन भी कर सकते हो. सी, रीसाइजिंग कैसे होगा? मैं इस तरह से इसको रीसाइज कर रही हूँ. ओके, एंड दिस वे you can rotate it. Okay ma'am. Once you are finalized and you are satisfied with your editions, आप editing करने के बाद you are just click on the commit button here on the option bar. ये option bar आ रही है, option bar के ऊपर commit button आ रहा है, that is tick button. अगर मैं इसको टिक कर दूंगी तो ये मेरी इमेज फाइनलाइज्ड हो जाएगी आफ्टर एडिटिंग. ओके मैम. ऑलराइट, मतलब फिर वो कंट्रोल प्लस टी फॉर ट्रांसफॉर्मिंग होगी ना? यस. ओके मैम. The menu for that is edit menu free transform. ठीक है? So two methods. One is the command and one is the shortcut key. अब थर्ड वे देखो इसका. एडिट मेन्यू के अंदर जाके ट्रांसफॉर्म पे जाओगे. लुक एट द स्क्रीन एवरीवन. फाइल मेन्यू, सॉरी, एडिट मेन्यू, ट्रांसफॉर्म ऑप्शन. ट्रांसफॉर्म के अंदर ही देखो बच्चे, देयर आर डिफरेंट ऑप्शंस. स्केल, रोटेट, स्क्यू अगर आपको करना है तो स्क्यू इज दिस. ओके, दिस इज स्क्यूइंग. Edit, transform, skew. Now you can rotate it 90 degree, rotate it 180 degree. So this is 180 degree rotation. Then next is flip vertical and flip horizontal. So this is flip, okay, under the transform sub option. Flip horizontal, flip vertical. All right. यहाँ तक कोई डाउट किसी को? Any doubt to anyone? Clear? Now, अब देखो यहाँ पे मैंने a lot of operations has been applied till now. मैंने इस पे resizing भी करा, मैंने rotation भी कर दिया, मैंने skewing भी लगा दिया, flipping भी करा. So many operations I have done. What if I want to go back? I want to reverse. I don't like, and I just want the actual image only. How I can undo it? What is the shortcut key of undo? बाकी सॉफ्टवेयर्स में क्या शॉर्टकट की होती है? कंट्रोल प्लस Z. कंट्रोल प्लस Z. बट इन फोटोशॉप इफ यू वांट टू डू रिवर्स एक्शंस, मल्टीपल रिवर्स एक्शंस, यू कैन नॉट डू. लेट्स से मैं यहाँ पे प्रेस कर रही हूँ फ्रॉम माय कीबोर्ड कंट्रोल प्लस Z. सो इट विल डू ओनली वन लास्ट एक्शन ओनली. उसके बाद वाले एक्शंस को नहीं करेगा. सी, उसके बाद वाले एक्शंस कर ही नहीं रहा undo. Okay, so for doing multiple reverse actions, note down the shortcut key Control plus Alt plus Z. In Photoshop, for doing the multiple, undo, for doing multiple, for cancelling the last actions, shortcut key is Control plus Alt plus Z. अब मैं यहाँ से अपने कीबोर्ड से Control plus Alt plus Z प्रेस कर रही हूँ. Control plus Alt plus Z.
ओके, एनी डाउट? यहाँ तक क्लियर हो गया? इंसर्टिंग इमेज, ओपनिंग एन इमेज एंड ट्रांसफॉर्मिंग कैसे करनी है। Ctrl+T और एडिट मेन्यू फ्री ट्रांसफॉर्म। एडिट मेन्यू ट्रांसफॉर्म ऑप्शन के अंदर बहुत सारी ऑप्शंस आ गई है, नोट डाउन दी ऑप्शंस। मैं यहाँ से ओपन कर रही हूँ, नोट डाउन दी ऑप्शंस। एडिट मेन्यू ट्रांसफॉर्म, अंडर द ट्रांसफॉर्म द ऑप्शंस आर स्केल, रोटेट, skew, rotate 180 degree, rotate 90 degree clockwise, rotate 90 degree counterclockwise. CCW means counterclockwise. Flip horizontal, flip vertical. एक्सक्यूज मी मैम, जो ट्रांसफॉर्म में जो ये सारी ऑप्शंस है मैम, हमने ये जो स्केल वाली ये स्केल रोटेट इसको फॉलो करना है या रोटेट 180 एंड या इन सभी को? कोई भी कर सकते हो। ओके मैम। रोटेट 180 डिग्री करोगे वो पर्टिकुलरली सिर्फ 180 पे ही रोटेट करेगा। अगर आप सिंपल रोटेट करो तो आप अपनी मर्जी से चाहे 20% एंगल पे करो, चाहे आप 30 एंगल ले लो, चाहे आप 90 डिग्री एंगल ले लो, वो आपकी मर्जी, आप कितने एंगल से रोटेट कर लो। ओके But मैम। in the lower values, these are the fixed values for rotation, ओके, right? यस मैम। Yes, any doubt? मैम वो एक बारी लास्ट वाली ऑप्शन दिखा दो, नीचे वाली Flip ट्रांसफॉर्म के जो। horizontal and flip vertical. मैम CCW का काउंटर क्लॉकवाइज है Counter मीनिंग? clockwise. ओके। मैम CW का क्या मीनिंग है? Clockwise. ओके मैम। Clear? Yes, Amarjot? मैम एक बारी जब मैम ऑल अंडू करने के लिए मैम कौन सी शॉर्टकट की है, एक बार Control दोबारा plus बता दो। Alt plus Z. शॉर्टकट ma'am. कीज Thank नोट you, कर ma'am. लो। जूम इन के लिए Ctrl++, जूम आउट के लिए जूम माइनस, या फिर आप ऑल्ट की के साथ भी कर सकते हो। Ctrl+T फॉर दी ट्रांसफॉर्मिंग, Ctrl+Alt+Z for undoing multiple actions. Then Ctrl+O for open, Ctrl+N for new document. चलो हाँ जी सक्षम। यस मैम, एडिट मेन्यू फ्री ट्रांसफॉर्म से क्या होता है? आप फ्री ट्रांसफॉर्म मीन्स आपके पास Ctrl+T आपके पास एक्टिव हो जाता है ना। ये देखो फ्री ट्रांसफॉर्म किया, the handles will appear now, so you can resize it. ओके मैम। ठीक है, तो अब ये मेरे पास सिलेक्शन हुई है, मैंने इसको रीसाइजिंग करके अपने पास चेंज करके रख लिया। सो यू कैन कॉपी इन एंड पेस्ट इट एनीवेयर। कॉपी पेस्ट का भी देख लो कैसे करना है। सपोज करो मैंने इतना पोर्शन अपना सिलेक्ट करा, राइट नाउ द सिलेक्टेड पोर्शन इज, आपको हमेशा ये देखना है कि आपकी इमेज का सिलेक्टेड पोर्शन कौन सा है। हाउ यू आर गोइंग टू नो कि आपका सिलेक्टेड पोर्शन कैसा है? सी दिस डैश्ड बॉर्डर, आपको डैश्ड बॉर्डर दिखाई दे रहे हैं सराउंडिंग द इमेज। So this means this particular area is selected. नीचे वाला देखो, बॉय का नीचे वाला लेग वाला पोर्शन देखो मेरा सिलेक्टेड नहीं है, मैंने सिर्फ उसका अपर पोर्शन सिलेक्ट करा, राइट? ओके, अब आपने इसको क्या करना है, हाउ टू कॉपी इट? अगेन टू मेथड्स, Ctrl+C, राइट डाउन द शॉर्टकट की फॉर कॉपिंग, Ctrl+C, फॉर पेस्टिंग Ctrl+V, Ctrl+C, Ctrl+V. Or what you can do, edit menu copy, edit menu paste. Edit menu copy,
edit menu, paste. Clear है? Control plus C, Control plus C. I have created a copy of this. अगर आपने जो भी चीज सिलेक्ट करी है उसको कॉपी कैसे बनाएंगे? Simply whatever the portion you have selected. तो ये मैंने कंट्रोल प्लस ऑल्ट प्लस जी कर दिया अभी. अब ध्यान से देखना, whatever the portion is selected, ये मेरा एक पोर्शन सिलेक्टेड है. आई एम होल्डिंग ऑल्ट की. एक बार ही ऑल्ट की प्रेस करोगे तो उसकी कॉपी जनरेट हो जाएगी. Pressing a hold key after selecting an image, write down press hold key once. Press the hold key once and use move tool. This is the move tool. The shortcut key of move tool is V. So I am going to create a copy. ये देखो मैंने alt की प्रेस की हुई है. मैं मूव टूल के साथ इसको मैंने ड्रैग किया तो मेरी कॉपी जनरेट हो गई. क्लियर? दिस इज माय कॉपी. इसको कंट्रोल प्लस टी करके मैं थोड़ा और छोटा कर रही हूँ. एक्सक्यूज मी मैम. मैम शॉर्टकट की टू मूव आपने एकदम रिपीट कर दो. वी वी सिंपल वी फॉर वैन. मैम उससे पहले जो लाइन बोली थी आपने वो भी एक बार रिपीट कर दो. Press down the और hold the alt key from the keyboard. Alt की प्रेस की, फिर आपने मूव टूल लिया. मूव टूल से अगेन यू आर ड्रैगिंग इट एंड अ न्यू कॉपी ऑफ द सिलेक्टेड इमेज विल जनरेट. सी, अब मैंने एक ही इमेज से 3 कॉपीज बना ली है. मैम मूव टूल की शॉर्टकट की वी है ना? वी. मार्क्यू टूल की शॉर्टकट की है एम. शॉर्टकट की फॉर द मार्क्यू इज एम. अब एक और शॉर्टकट की देखो, नीचे वाले में देखो बॉर्डर अभी भी आ रहे हैं. बट इफ आई वांट टू डीसिलेक्ट इट, अभी तो राइट नाउ इट इज अ सिलेक्टेड. हाउ आई कैन डीसिलेक्ट इट? द शॉर्टकट की फॉर डीसिलेक्शन इज कंट्रोल प्लस डी. मैं कंट्रोल प्लस डी करूंगी तो ये डीसिलेक्ट हो जाएगा, अभी फिक्स हो जाएगा. देखो स्क्रीन पे अभी सिलेक्शन हुई है. मैं इसको डीसिलेक्ट कर रही हूँ कंट्रोल प्लस डी. तो सी, आई हैव चेंज्ड माय इमेज नाउ. ओके, सो दिस वे यू कैन एडिट योर इमेजेस. ओके, ऑल्ट दबा के मैंने इसकी कॉपी जनरेट करी. देन कंट्रोल प्लस डी से डी सिलेक्शन करी. ऑल राइट, एनी डाउट टिल नाउ? यस मैम. मैम जो इसकी जो एक्सटेंशन है डॉट पीएसडी, तो मैम ये जब हम इस डॉक्यूमेंट या इस इमेज को जब हम सेव करेंगे तब भी हमने यही एक्सटेंशन डालनी है? हाँ, फोटोशॉप की एक्सटेंशन ही डॉट पीएसडी ऑटोमेटिकली इससे सेव हो जाएगा. ओके मैम. Okay, so this thing is clear. Now one more thing I want to tell you. इसके लिए मैं अभी न्यू ले रही हूँ दोबारा से. Okay, so you can see, look at my mouse pointer. This is foreground color. This is background color. Okay, foreground color and this is background. जो ऊपर वाला है वो foreground है, नीचे वाला क्या है? बैकग्राउंड है. ओके, बाय डिफॉल्ट यहाँ पे ब्लैक एंड व्हाइट की ऑप्शन आ रही है. अगर आप इस पे क्लिक करेंगे, ध्यान से देखो मेरा माउस पॉइंटर, डिफॉल्ट फॉरग्राउंड एंड बैकग्राउंड कलर. इस पे क्लिक करूंगी तो ये डिफॉल्ट ब्लैक एंड व्हाइट फिल कर रहा है इसमें. उसके साथ एक एरो है स्वैप. स्वैप मीन्स फॉरग्राउंड को बैकग्राउंड के साथ स्वैप कर दो, बैकग्राउंड को फॉरग्राउंड के साथ स्वैप कर दो. अगर आपको डिफरेंट कलर चूज करने हैं तो दिस वे यू कैन हैव द डिफरेंट कलर्स एज वेल. तो इस तरह से आप कलर्स सेट कर सकते हो, फॉरग्राउंड कलर एंड बैकग्राउंड कलर. तो सी, स्वैपिंग कर सकते हैं हम फॉरग्राउंड एंड बैकग्राउंड कलर की.
अब अगर आपको यहाँ पे कलर फिल करना है, राइट नाउ दिस इज द बैकग्राउंड लेयर, ये बैकग्राउंड लेयर है। अगर इसके ऊपर मुझे कुछ कलर फिल करना है तो व्हाट आई एम गोइंग टू डू इज, मैंने यहाँ पे शॉर्टकट की प्रेस करी, ऑल्ट प्लस बैक स्पेस, राइट डाउन, ऑल्ट प्लस बैक स्पेस फॉर फिलिंग फोरग्राउंड कलर, ऑल्ट प्लस बैक स्पेस फॉर फिलिंग बैकग्राउंड कलर, कंट्रोल प्लस बैक स्पेस फॉर फिलिंग बैकग्राउंड कलर, ऑल्ट प्लस बैक स्पेस से फोरग्राउंड कलर, कंट्रोल प्लस बैक स्पेस से बैकग्राउंड कलर। गौरिश कीप द ग्लास साइड बच्चे। मैम एक बार फिर से रिपीट कर दो। ऑल्ट प्लस बैक स्पेस फोरग्राउंड कलर सेट करेगा, कंट्रोल प्लस बैक स्पेस फोरग्राउंड कलर। ओके, ये चीज क्लियर हो गई। अब मैंने जब इस पे कलर फिल करा, ये मेरी पूरी की पूरी लेयर के ऊपर ही कलर हो गया। बैकग्राउंड लेयर थी मेरी, व्हाइट कलर का आ रहा था पहले, मैंने कलर फिल करा एंड पूरी की पूरी लेयर पे ही कलर चला गया। नाउ व्हाट इफ आई वांट कि पूरी की पूरी लेयर पे नहीं जाए, सिंपली मैं कुछ चीज को सिलेक्ट करूं, मैं कुछ सिलेक्शन बनाऊं, उतने पे ही कलर जाए। उसको क्या करेंगे, पहले हम एक सिलेक्शन बना लेंगे। ये मैंने एक सिलेक्शन बना ली। अब सिलेक्शन का मतलब है यहाँ पे कि सिर्फ इतना ही पोर्शन सिलेक्टेड है, उसके बाहर वाला पोर्शन मेरा अनसिलेक्टेड है। जितने में रेक्टेंगुलर एक बन रहा है, ओनली दैट पोर्शन इज सिलेक्टेड। अब मुझे इसके अंदर कलर फिल करना है, तो आई एम यूजिंग बैकग्राउंड कलर, कंट्रोल प्लस बैक स्पेस। पूरी की पूरी लेयर पे नहीं अब मैंने किया, लेयर के ऊपर पहले मैंने एक सिलेक्शन बनाई और उस सिलेक्शन के अंदर मैंने कलर फिल किया अपना। गॉट इट? कि पूरी की पूरी लेयर पे करोगे तो क्या होगा, सिलेक्शन बना के करोगे तो क्या होगा। ऑल राइट, नाउ फर्स्ट टूल हेयर इज सिलेक्शन टूल। सिलेक्शन टूल के अंदर रेक्टेंगुलर मार्की टूल, ये मैं रेक्टेंगुलर मार्की टूल बनाई जा रही हूँ सारा। पहले मैं इसको डीसिलेक्ट कर रही हूँ, इसके अंदर मैंने एक और बना लिया। नाउ यहाँ पे मैंने ऑल्ट प्लस बैक स्पेस से फोरग्राउंड कलर सेट कर दिया, कंट्रोल प्लस डी किया, एक और सिलेक्शन बनाई। नाउ चेंज द कलर, ठीक है, ऑल्ट प्लस बैक स्पेस, इसमें भी कंट्रोल प्लस बैक स्पेस से बैकग्राउंड कलर फिल किया। सो दिस वे मैंने सिलेक्शंस बनाई और सिलेक्शंस के अंदर मैंने डिफरेंट डिफरेंट कलर्स को फिल कर दिया। ओके, सो दिस इज इन नॉर्मल। अब ऊपर देखो, यहाँ पे सिलेक्शन टूल की कुछ प्रॉपर्टीज आ रही हैं ऑप्शंस बार पे। फर्स्ट है नॉर्मल सिलेक्शन। जब आप एक नॉर्मल सिलेक्शन बना रहे हो और आप उसके अंदर कुछ ना कुछ कलर फिल कर रहे हो। ऑल राइट, नाउ नेक्स्ट इज ऐड टू सिलेक्शन। ऐड टू सिलेक्शन में बच्चे अब ध्यान से आपने देखना है, ऐड टू सिलेक्शन का मतलब है इफ आई वांट टू मेक अ न्यू सिलेक्शन, और मैं जो चीज भी बनाऊंगी उसके अंदर ही ऐड होते चले जाएगा। सी, पहले क्या हो रहा था, हर बार एक एक न्यू न्यू रेक्टेंगल बन रहा था और उसके ऊपर ऊपर आ रहा था, राइट। ऐड टू सिलेक्शन मीन्स मेरी पिछली वाली सिलेक्शन में कुछ और ऐड हो जाए। तो यहाँ तो आप यहाँ से ऑप्शन बार पे ऐड टू सिलेक्शन का बटन प्रेस कर लो। ऑल्टरनेटिवली व्हाट यू कैन डू इज यू कैन यूज शिफ्ट की, होल्ड डाउन द शिफ्ट की फ्रॉम द कीबोर्ड, सिलेक्शन बनाते जाओ, उसमें ऐड होते चले जाएगा। सी, मेरी सिलेक्शन उसके अंदर ही ऐड हो रही है। ये सारा मैंने एक ही बना दिया सिलेक्शन से, सो इट इज एडिंग, मतलब मेरी सिलेक्शन के अंदर ऐड हो रहा है। Clear? Add to selection, either you can use add to selection from the options bar or shift key, hold the shift key, तो आपकी selection में add हो जाएगा। Now what if I want to minus it, मुझे subtract करना है, तो उसके next option है यहाँ पे subtract from selection। अब मैं जो चीज को ड्रॉ करूंगी तो मेरी सिलेक्शन में से निकलता जाएगा, माइनस होता जाएगा। subtract from selection जा तो यहाँ से ले लो, और द शॉर्टकट की इज ऑल्ट की। ऑल्ट की किया मैंने, देखो यहाँ पे माइनस का साइन आ रहा है ना साथ में, देखो माउस पॉइंटर प्लस के साथ माइनस बन गया, मतलब मैंने ये निकाला तो मेरा ये माइनस हो गया, इतना पोर्शन माइनस हो गया, यहाँ से ये माइनस हो रहा है।
सो ये मेरी सिलेक्शन में से माइनस हो रहा है। क्लियर? मैंने अपनी सिलेक्शन में से इतना पोर्शन डिडक्ट कर दिया, सो दिस इज माइनस। मैम जो मतलब आपने ये सबट्रैक्ट सिलेक्शन से सिलेक्ट किया है, वो वाला पार्ट डीसिलेक्ट होगा कि जो उसके आउटर वाला है वो डीसिलेक्ट होगा? जिसमें आप सिलेक्शन बना रहे हो, जो चीज जितनी आप सिलेक्शन Okay, करते ma'am. जाओगे उतना डिडक्ट होते जाएगा। ओके मैम। मैम Clear? उसके लिए जो ऐड टू सिलेक्शन है उसके लिए कौन सी की आपने बोला था शिफ्ट होल्ड की, करिए? शिफ्ट की फॉर एडिंग सिलेक्शन ओके मैम। एंड फॉर डिलीशन ऑल्ट की। अब थर्ड है इंटरसेक्ट। इंटरसेक्ट का मतलब क्या होता है? दोनों का यूनियन करना, जहां पे दोनों चीजें आप चाहते हो, एडिशन भी और सब्ट्रैक्शन भी, तो उसके लिए दोनों कीज इकट्ठी प्रेस होंगी, शिफ्ट एंड ऑल्ट, शिफ्ट एंड ऑल्ट। दिस मीन्स दैट पोर्शन विल गेट इंटरसेक्ट। आपने उसका कुछ कॉमन निकाल लिया, तो इसके लिए हम डिफरेंट कलर ले लेते हैं। ठीक है, तो ये मेरा बन गया इंटरसेक्ट। ऑल्ट एंड शिफ्ट की टुगेदर, सो दिस इज अ सिलेक्शन टूल। यहाँ पे मैंने अभी कौन सा सिलेक्शन टूल यूज किया? अब यहाँ पे आ जाओ वापस से। अगर तो मैं रेक्टेंगुलर ले रही हूँ तो मेरी जो सिलेक्शन है वो रेक्टेंगुलर शेप में होगी। ओके, इट विल सिलेक्ट द इमेज इन अ रेक्टेंगुलर शेप। तो ये रेक्टेंगुलर बन रहा है, राइट? If I want to select in this circular shape, तो I will use elliptical marquee. ये सर्कुलर शेप बन रही है। अगर आपको सर्कुलर शेप में करना है, अब देखो मैंने सर्कुलर शेप से इसकी ऑल्ट से कॉपी बना ली है, राइट? तो दिस इज एलिप्टिकल। एलिप्टिकल मीन्स आइदर सर्कल और ओवल। अगर तो ओवल बनाना है तो नॉर्मली ओवल बन जाएगा सिलेक्शन टूल से ही, एलिप्टिकल सिलेक्शन से ही। अगर आपको एग्जैक्ट सर्कल बनाना है तो एग्जैक्ट सर्कल के लिए शिफ्ट की होल्ड करके रखनी है। सिमिलरली रेक्टेंगुलर मार्क्यू में वो रेक्टेंगुलर से आपको सिलेक्शन दे रहा है, बट इफ यू वांट टू सिलेक्ट इन अ परफेक्ट स्क्वायर, तो परफेक्ट स्क्वायर के लिए अगेन यू विल प्रेस शिफ्ट की, तो इट विल सिलेक्ट इन द फॉर्म ऑफ अ स्क्वायर, राइट? इसके अंदर ही हमारे पास दो और टूल्स हैं, दैट इज सिंगल रो एंड सिंगल कॉलम। सिंगल कॉलम इज एक वर्टिकल कॉलम सिलेक्ट होगा लाइक दिस, and single row means a horizontal one row will get selected like this. तो आपने इसकी any doubt in the selection tool? Marquee selection tool is clear. Rectangular, elliptical, single row and single column. एक्सक्यूज मी Any मैम। doubt? मैम जो शिफ्ट की और ऑल्ट की टुगेदर प्रेस करनी है वो किस फंक्शन के लिए है? वो आप यूनियन निकाल रहे हो, इंटरसेक्ट कर रहे हो। मीन्स आपके पास कुछ दो चीजें हैं, और यहाँ पे देखो अब दोबारा से मैं यहाँ से ले रही हूँ एलिप्टिकल एंड आई हैव टेकन दिस। इतना पोर्शन मेरा सिलेक्ट हुआ, नाउ दिस पोर्शन इज सिलेक्टेड। इतना रेक्टेंगल आपको दिख रहा है, शिफ्ट ऑल्ट। अब मैंने यहाँ पे एक और सिलेक्शन बनाई, तो मेरा उसका जो कॉमन पोर्शन होगा दोनों सिलेक्शन में से वो निकलेगा इंटरसेक्ट होके। ठीक है, जितना पोर्शन आपस में इंटरसेक्ट हुआ उतना पोर्शन आपका सिलेक्शन का पार्ट बन जाएगा। जो पोर्शन अनसिलेक्टेड है, जो कॉमन नहीं है दोनों सिलेक्शन का, वो डिडक्ट हो जाएगा। ओके, सो एनी डाउट टिल नाउ? आज हमने क्या किया, इमेज को इंसर्ट कैसे करना है, इमेज को ओपन कैसे करना है, उसके ऊपर एडिटिंग कैसे करनी है, ट्रांसफॉर्मेशंस कैसे लगानी है, फिर कॉपी कैसे क्रिएट करनी है, पेस्टिंग कैसे करनी है। Ctrl+C, Ctrl+V, ऑल्ट से हम कॉपी बनाएंगे, मूव टूल के साथ हम उसको ड्रैग कर सकते हैं। जो भी पोर्शन आपने सिलेक्ट करा, पहले आपने सिलेक्शन बना लेनी है। सिलेक्शन बनाने के बाद
what you have to do, using the move tool, ये पहले सिलेक्शन बनी, फिर आपने मूव टूल लिया, मूव टूल से आप देखो इसको ड्रैग करके कहीं पे भी मूव कर सकते हो। सी ये मैंने मूव किया ना यहाँ पे, तो ये मैंने मूव किया, अब इसकी मैंने कॉपी भी क्रिएट कर ली, तो कॉपी क्रिएट करके मैंने दूसरी इमेज पे इसको पेस्ट कर दिया Ctrl+V से। मैंने यहाँ से क्या किया, सिलेक्ट किया, मूव किया, मूव करके मैंने इसकी Ctrl+C से कॉपी बनाई, कॉपी बना के मैंने दूसरी इमेज के ऊपर इसको पेस्ट कर दिया। सो दिस इज कॉपिंग मूविंग ऑपरेशन। कॉपी भी हो गया, मूव भी हो गया, पेस्ट भी हो गया। ओके, एंड एट लास्ट वी डिड सिलेक्शन टूल्स। सिलेक्शन टूल्स में हमने आज कौन सा सिलेक्शन टूल अंडरस्टैंड किया है? मार्क्यू सिलेक्शन टूल। मार्क्यू मीन्स it is used to select the part of an image, either in the form of rectangular, either in the form of circle, or single row or a single column. एक्सक्यूज मी मैम, हाँ जी, मैम जो एक टाइम जो ट्रांसफॉर्म के अंदर जो ऑप्शन है मैम, एक टाइम वो दोबारा रिपीट कर दो। options under transform, यस मैम। scale, rotate, skew, flip horizontal, flip vertical, rotate 180 degree, rotate 90 degree, clockwise, rotate 90 degree, counterclockwise. Clear? Okay, then see you in the next class. Next class में हम new selection tool study करेंगे. Okay? Today we did one selection tool, that is Marquee tool. Marquee tool के अंदर फिर से 4 सब options आ रही थी. अब इसके बाद हम एक new और selection tool study करेंगे in the next lecture. Okay बच्चे. थैंक यू मैम।